Hello student, good morning. This is Sandeep Kumar Singh, your SST teacher, and today I am going to explain about chapter 19, rights and duties. First we know that what are rights and what are duties. Student, rights, when there is no restriction to do anything, that is called right. But in our activities there are some responsibilities, that is called duties. Okay, so let us start now. India gained its much awaited freedom from the British at the midnight of 15 August 1947. At that time, however, India did not have its framework of governance. Student, India have लास्ट भारत जो है बहुत समय तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है, लेकिन इसको स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947, बहुत लंबे संघर्षों के बाद। उस समय भारत में कोई भी गवर्नेंस के लिए कोई भी फ्रेमवर्क या कोई भी ढांचा तैयार नहीं था, लेकिन हमारे विद्वानों ने अथक प्रयास के बावजूद on 26 January 1950, India's constitution came into force. The Constitution of India is supreme law of the land. It laid down the rights and duties for the people of nations. भारत का संविधान जो है भारत के लोगों के लिए है और यहाँ के लोगों के लिए राइट्स और ड्यूटीज़ के लिए प्रावधान किया हुआ है। We will now discuss fundamental rights and fundamental duties of the people of India. Rights और duties क्या क्या हैं, अधिकार और कर्तव्य क्या क्या हैं। जैसा कि पहले बताया कि जहाँ पर आपको कोई भी कार्य करने के लिए कोई भी बाध्यता न हो, वो आपका अधिकार होता है, लेकिन जहाँ पर अधिकार शुरू होते हैं, अगर हम उसकी जिम्मेदारी को न समझें तो वो अधिकार नहीं बल्कि एक तरह से हमारा क्या है, व्यवधान हो जाता है। तो एक तरह से हमारा कर्तव्य बनता है ड्यूटीज़। इट इज़ ड्यूटीज़ टू द पीपुल टू डू देयर राइट्स विथ प्रॉपर वे। फंडामेंटल राइट्स, द फर्स्ट फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू इक्वलिटी। इट मीन्स दैट all the Indians are equal to the eyes of laws. Right to equality means that every citizen of India equal in the eyes of laws. हर भारतीय नागरिक जो है कानून के समक्ष क्या है, बराबर है। No discrimination can be made on the basis sex, caste, color, creed, religion, race, place or birth. कोई भी व्यक्ति जो है ना ही वो लिंग के आधार पर, ना ही जात के आधार पर और ना ही रंग या पंथ या धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भेदभाव कानून नहीं कर सकता। नो रिलीजन, नो सिटीजन कैन डिनाई एक्सेस पब्लिक प्लेसेस फैसिलिटीज ऑफ एनी बेसिस। और कोई भी व्यक्ति जो है इन सभी उपरोक्त जो बताए गए हैं उसके आधार पर कोई भी प्लेस, सार्वजनिक जगह जो है उसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। सभी उस जगह का इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड सम स्पेशल प्रोविजंस फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। लेकिन कुछ समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। दीज प्रोविजन इंक्लूड रिजर्वेशन एंड फ्यू एडवांटेज, एंड these provisions are called a reservation of few advantage to the some people of the society. The reservation are meant for bringing oppressed to weaker section society into the mainstream. इनको रिजर्वेशन इसलिए दिया गया है कि ये जो समाज के पिछड़े लोग हैं ये मुख्य धारा में उठ करके शामिल होने का प्रयास करें, ताकि इनको आगे उत्थान के लिए मौका या अवसर दिया जाता रहा है। Reservation for getting admission into such school and colleges and government job as few examples. ये रिजर्वेशन या आरक्षण जो है भारत के नागरिकों को कहाँ कहाँ मिलता है, जैसे स्कूल में एडमिशन के लिए, सरकारी नौकरियों में या और अन्य सुविधाओं को
उठाने के लिए ये इस तरह के रिजर्वेशन जो है दिए जाते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स every citizen the right to express his her feeling and opinions without fear and prejudice, right to peacefully assemble without armed form, union or association, move freely anywhere in the country and live settle in any part of the country. It means that every citizen have right to freedom of speech and express. Every citizen had express of their feelings to people, and every citizen can be go and stay any part of the country without fear. Every citizen come with responsibility. We have the right to freedom of speech and expression, but does not give us liberty to say bad things about people, unreasonable or abuse people. In that case, our right would become discomfort for the other. हालांकि हमको अधिकार मिला है कि हम अपनी बातों को रख सकते हैं बिना डर के, लेकिन अगर हम किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं बिना किसी कारण के, या कह लें कि हम अपने अधिकारों का हनन करते हैं, तो इससे हमें हमारे लिए ही नुकसान पहुंचेगा और दूसरे का भी नुकसान होगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैव राइट टू लिव विदाउट any form exploitation. It means that every citizen has no deny to of law. No individual, company or entire force any person work bonded laborer. Any company does not put any child labor below 14 year. Children below 40 year age cannot be employed in the form of industry. Our constitution gives them a right to education and protect them from any kind of exploitation. Next is the right to freedom of religion, धर्म की स्वतंत्रता. India is a secular country. It means India has no religion. It's no religion means भारत का कोई अपना धर्म नहीं है. यहाँ पर जो भी धर्म है, कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को अपने अनुसार फॉलो कर सकता है और भारत उस सभी व्यक्तियों का सम्मान करेगा. भारत का संविधान उनका सभी सम्मान करेगा. देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन. ऑल इंडियंस आर फ्री टू फॉलो द रिलीजन इन ऑफ देयर चॉइस. अपनी इच्छानुसार जो भी व्यक्ति जो भी धर्म, पंथ या किसी भी भावना को वो सम्मान कर सकते हैं. दे कैन नॉट बी फोर्स टू चेंज एक्सेप्ट एनी रिलीजन. कोई भी व्यक्ति ना ही इसको बदलने के लिए ना ही अपनाने के लिए इसको बाध्य कर सकता है. ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड अलाइक बाय गवर्नमेंट. सभी व्यक्ति जो है, सभी धर्म जो है समान रूप से सरकार द्वारा सम्मान दिया जाएगा. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. इंडिया इज अ कंट्री many religion, culture, sect and communities have their own belief and tradition. The constitution provides for measures that would safeguard the right of the people, preserve their cultural identities and tradition. In the country, people also preserve their right and cultural beliefs with freely. The various religious and cultural groups such as Muslims, Sikhs, Christian, etc. have right to set up educational institutions, propagate their cultural values. भारत में कुछ व्यक्तियों जैसे सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन आदि के लिए वो अपना स्कूल खोलने के लिए, अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए स्कूल खोलने के लिए स्वतंत्र है. इसमें कोई भी भारत सरकार का कोई भी नागरिक इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. नेक्स्ट इज the state will run school, college, educational institute where no religious teaching it allows. यानी कोई भी व्यक्ति अगर स्कूल कॉलेज खोलता है तो उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी. एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन टेक
admission in these institutions based on his eligibility without prejudice, religion, caste, creed and economic condition। और सभी संस्थान चाहे वो कोई सरकारी हो या प्राइवेट संस्थान हो, बिना भी किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी धर्म से, जाति से, पंथ से या आर्थिक स्थिति में, उसका कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। All Indian citizens are equal in the eyes of law. They have constitutional right to seek justice from the courts of India if their fundamental right are denied। अगर किसी व्यक्ति का अधिकारों का हनन होता है तो कोर्ट जो है सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखेगा और सभी को समान रूप से न्याय देने का प्रयास करेगा। फंडामेंटल राइट्स आर प्रिविलेज एंजॉय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट्स केवल उसी समय सीमित कर दिए जाते हैं जब देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल लागू होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सस्पेंड दिस राइट्स टेम्पररली। और अस्थायी रूप से इस सभी राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, मतलब उस समय कोई भी राइट्स जो है काम नहीं करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स आवर नेशन एंड फेलो सिटीजन्स। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे देश के लिए, देश के नागरिकों को फॉलो करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू एंजॉय द राइट फ्रीली वी नीड परफॉर्म फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमें अपने राइट को, अपने अधिकारों को पालन करने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी करना चाहिए, जैसे कि वी मस्ट ओबेज कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। जब भी कहीं राष्ट्रगान होता है या राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है तो हमें अपने इनका सम्मान करना चाहिए, साथ ही साथ संविधान का भी सम्मान करना चाहिए या संविधान के कानूनों का पालन करना चाहिए। इट इज़ आवर ड्यूटीज टू सर्व आवर कंट्री इन द आवर ऑफ नीड। यानी जब भी ज़रूरत हो देश की सेवा के लिए हमें स्वयं तत्पर होना चाहिए। इट इज़ आवर ड्यूटी टू फॉलो बेसिक प्रिंसिपल लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी सिद्धांत या जो भी लॉ कानून में दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उसका पालन करना चाहिए। वी मस्ट वर्क टुवर्ड प्रोटेक्टिंग दैट सेकुलरिटी, सॉवरेंटी एंड डेमोक्रेसी ऑफ आवर नेशन। हमें अपने देश की एकता, अखंडता और उसकी सेकुलर और सॉवरेनी यानी संप्रभु राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहिए। वी मस्ट वर्क टुवर्ड द प्रोटेक्टिंग आवर कल्चर हेरिटेज ऑफ द नेशन। जो भी राष्ट्र की संपत्ति, चाहे वो कल्चरल हेरिटेज हो या कोई भी हेरिटेज हो, उसकी हमें सुरक्षा करना चाहिए। वी मस्ट नॉट स्पॉयल द ब्यूटी ऑफ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। हमें किसी भी मोनूमेंट्स यानी स्मारक को नष्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज टू ट्राई प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा हमेशा करनी चाहिए। वी मस्ट वर्क हार्ड to contribute taking our country toward greater highest of the development through sincere endeavor in the respective fields। हम जिस भी फील्ड में काम करते हैं वहाँ पर हमें अपनी आपको हमें अच्छे से मेहनत करना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना चाहिए, ताकि हमारा देश जो है विश्व के अनेक देशों से आगे निकलने में मदद मिले। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दीज आर प्रिंसिपल गाइडलाइन टू फॉलो द गवर्नमेंट to make India as a welfare state। In the directive principle, the Constitution said to the states and state and central government to follow some rules. The government should work toward provide adequate means of livelihood to the citizens। गवर्नमेंट को ये आदेश दिया जाता है कि सभी नागरिकों के लिए, उनके रहने के लिए, उनके व्यवस्थाई रहने के लिए, उनकी सुविधाओं को ध्यान रखते हुए जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास करें। गिव चांस सेल्फ गवर्नेंस टू पीपुल एट द ग्रास रूट लेवल एट थ्रू विलेज, पंचायत एंड ग्राम सभा। सभी व्यक्तियों को चाहे वो सेल्फ गवर्नेंस का पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए, चाहे वो गांव स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो या ग्राम सभा स्तर पर हो। सेफ गार्ड द राइट ऑफ वुमेन चिल्ड्रेन इन सोसाइटी, गिव देम स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर बेटर डेवलपमेंट। सभी महिलाओं, बच्चों के लिए सोसाइटी में जो सबसे कमज़ोर वर्ग के होते हैं उनको सुरक्षित रखना और साथ ही साथ उनको बेहतर अवसर देना ताकि उनके विकास में बाधा न बने। प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड
केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अनटिल एज ऑफ 6 ईयर। जब तक कि वो बच्चे 6 एज के ना हो तब तक उन्हें जो है जब बच्चे 6 साल के हो जाते हैं तो सभी बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है। वर्क फॉर इम्प्रूवमेंट द स्टेटस ऑफ द वीकर सेक्शन इन सोसाइटी, जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए कुछ कार्य करना चाहिए ताकि उनकी इम्प्रूवमेंट बढ़ती रहे। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए